کراچی میں شدید بارشوں سے تعلیمی سرگرمیاں بھی متاثر۔ خراب موسم کے باعث آج تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے اور جامعات بھی بند۔ اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کے تحت آج ہونے والا امتحان بھی ملتوی۔ پرچہ 25 اگست کو لیا جائے گا۔ کراچی یونیورسٹی میں آج پرچے نہیں ہوں گے۔ سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی میں انٹرویوز اور کلاسز ملتوی۔ طالب علموں کے داخلہ انٹرویوز 19 اگست کو ہوں گے۔ وفاقی جامعہ اردو میں بھی تعلیمی سرگرمیاں معطل۔ سندھ حکومت نے سرکاری اداروں میں تعطیل کے نوٹیفیکیشن کی تردید کر دی۔ صوبائی حکومت نے سوشل میڈیا پر وائرل نوٹیفیکیشن جعلی قرار دے دیا ہے۔ محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اور کوارڈینیشن کے وضاحتی نوٹیفیکیشن کے مطابق سندھ حکومت نے آج عام تعطیل کا کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل نوٹیفیکیشن جعلی ہے۔ آج تمام سرکاری اور نیم سرکاری دفاتر کھلے رہیں گے، البتہ صرف نجی اور سرکاری اسکول بند رہیں گے۔ نجی اور سرکاری اسکول بند رکھنے کا نوٹیفیکیشن محکمہ اسکول تعلیم نے جاری کیا ہے۔ محکمہ کالج تعلیم نے تمام کالجز بھی بند رکھنے کا الگ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ صوبے کے تمام دفاتر غیر معمولی طور پر کھلے ہیں۔ کراچی کے شہریوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ بارش کے بعد مختلف علاقوں کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جس کے باعث مختلف پوائنٹس پر شدید ٹریفک جام روز کا معمول بن گیا ہے۔ پرانی سبزی منڈی کے قریب مرمتی کام کے بعد صرف مٹی ڈال کر سڑک ہموار کی گئی تھی، جس کے بعد یونیورسٹی روڈ سے پرانی سبزی منڈی جانے والی شاہراہ پر ٹریفک جام رہنے لگا ہے۔ اس کے علاوہ نیشنل اسٹیڈیم کے قریب کاساس کے پل پر جانے سے پہلے کی سڑک ناہموار ہے، جس کی وجہ سے سیوک سینٹر سے نیشنل اسٹیڈیم جانے والے راستے پر بھی ٹریفک کا دباؤ رہنے لگا ہے۔ شہریوں کی آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے اور چند منٹوں کا سفر بھی چیلنج بن چکا ہے۔ شہر قائد میں صبح سے ہی مختلف علاقوں میں بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بھی شہر میں دوپہر کے بعد کہیں ہلکی تو کہیں تیز اور درمیانے درجے کی بارش متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہونے والی بارش کے اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔ کہاں کتنی بارش ہوئی ہے جانتے ہیں اپنی نمائندہ عادیہ ناز سے۔ جی عادیہ، بتائیے گا اس حوالے سے۔ بالکل، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کراچی میں سب سے زیادہ بارش جو ہے وہ گلشن حدید میں ریکارڈ کی گئی، جہاں پر تقریباً 102 ملی میٹر بارش جو ہے وہ ہوئی۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں صدر کی تو دوسرے نمبر پر صدر کا مقام رہا، جہاں 60 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اس کے علاوہ دیگر علاقوں میں اولڈ ایئرپورٹ جہاں 19.1 ملی میٹر بارش ہوئی، فیصل بیس میں 13 ملی میٹر، جناح ٹرمینل پر 21.4 ملی میٹر، قائد آباد میں 49 ملی میٹر بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی۔ سرجانی ٹاؤن میں 11.3، جبکہ ڈی ایچ اے فیز 2 میں بھی 11.3، سادی ٹاؤن میں 3.1 اور کیماڑی میں 10 ملی میٹر بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی۔ تو تمام اعداد و شمار میں یہ بات واضح ہوئی کہ سب سے زیادہ بارش جو ہے وہ گلشن حدید میں ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد صدر بھی ایسی ہی جگہ پہ آتا ہے جہاں پر بہت زیادہ بارش ہوئی۔ تو آج بھی محکمہ موسمیات نے امکان ظاہر کیا ہے کہ مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی، کہیں تیز اور کہیں درمیانے درجے کی بارش ہو سکتی ہے، اور آج ویسے بھی صبح سے ہی وقفے وقت سے بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ بوندا باندی کا سلسلہ خاص طور پر جاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کراچی کا موسم آج خاصا سہانا اور خوبصورت ہے۔ آج تو ہوائیں بھی کراچی میں چل رہی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں جنوب مغربی سندھ سے ان کی رفتار اس وقت تقریباً 15 نوٹیکل مائل بتائی جا رہی ہے۔ 2 روز سے ہی کراچی میں سمندری ہوائیں بحال ہیں، جس کی وجہ سے موسم خوشگوار دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ابھی ٹیمپریچر جو ہے وہ بہت کم، یعنی کہ 29 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 83% ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ آج جو میکسیمم ٹیمپریچر ہے وہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے، کم سے کم 26.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ تو اس وقت امکانات یہ ہیں کہ آج دوپہر کے بعد جب بارش شروع ہوگی تو شام تک اس کے جاری رہنے کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں، جبکہ کل شہر میں بارش جو ہے وہ ہوگی ضرور، لیکن بہت ہلکی ہوگی، یعنی کہ کل آخری روز ہوگا بارش تھمنے کا۔ اس کے بعد ایک نیا اسپیل آئے گا، لیکن وہ اگلے ویک میں یعنی کہ نیکسٹ ویک میں بتایا جا رہا ہے۔ البتہ یہ اسپیل جو ہے کل اختتام پذیر ہو جائے گا، اور اسی اسپیل کے اثرات جو مونسون کا ہوا کا کم دباؤ ہے وہ اس وقت مشرقی سندھ میں موجود ہے، اور اس کے اثرات کراچی میں بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سمندر میں بھی طغیانی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج اور کل یعنی کہ آج بھی اور 19 تاریخ تک ماہی گیروں کو جو ہے کھلے سمندر میں نہ جانے کی ہدایات جاری کی ہیں، اور کہا ہے کہ کھلے سمندر میں جانے سے گریز کریں تاکہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ نہ ہو سکے۔ اچھا عادی، یہ بھی بتائیے گا کہ نئے اسپیل کی بھی پیشگوئی کی جا رہی ہے؟
बिल्कुल ऐसा ही है। नए स्पेल की पेशगोई की जा रही है। बताया जा रहा है कि उसका आगाज़ जो है वो नेक्स्ट वीक यानी कि 23 से 24 अगस्त को मुतवक्के है और इस दौरान अलबत्ता कितनी बारिशें होंगी, महकमा मौसमात का कहना है कि ये कहना क़बल अज़ वक्त होगा। बारिशों का नया स्पेल जो है उससे 1 या 2 रोज़ पहले एडवाइजरी जारी की जाएगी और बताया जाएगा कि आया वो स्पेल ताकतवर है या फिर वो कमज़ोर है और उस दौरान हल्की हल्की बारिश होगी या बूंदाबांदी होगी या फिर जो है वो तेज़ बारिश देखने में आएगी। अलबत्ता ये ज़रूर बताया है कि 23 तारीख के बाद से एक और स्पेल आ रहा है और वो कराची में ही नहीं बल्कि सिंध और बलूचिस्तान में भी दस्तक दे रहा है। अच्छा, बारिशों का मौसम है और नए स्पेल की भी पेशगोई की जा रही है, तो इंतजामिया की जानिब से कुछ इकदाम किए जा रहे हैं इस हवाले से? देखिए, इंतज़ामिया की जानिब से इक़दामात तो इस वक्त धरे के धरे हैं। उसकी वजह यह है कि कराची का कोई रोड ऐसा नहीं बचा जो कि टूट फूट का शिकार ना हो या गड़े ना पड़े हों। लेकिन जिन सड़कों के करीब से नदियां बहती हैं वो तो रोड ही साथ बह के चले गए। तो इंतज़ामिया अभी इंतज़ार कर रही है कि मानसून का मौसम थमे और फिर उसके बाद कहीं जाकर जो है वो उनकी तामीर शुरू की जाए। मामला यहाँ पर यह है कि जिन रोड्स पर गड़े पड़ गए हैं उनको भी पुर नहीं किया जा पा रहा। उसकी वजह बताई जा रही है कि जब मानसून का सिलसिला थमेगा तो फिर जाकर तरक्याती काम शुरू करेंगे। लेकिन ऐसे में एक जो सबसे बड़ी दुश्वारी है वो इंतज़ामिया के ये काम ना करने की वजह से कराची में जो ट्रैफिक है वो बड़ा बदतरीन तरीके से जैम होता है और सड़कों पर पानी जो है बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, उसको निकालने में मुश्किलात का सामना है। ये ज़रूर है कि DMC KMC का अमला जो है वो सड़कों पर नज़र आ रहा है। आजकल पानी निकालने के लिए कुछ मशीनें भी लगाई गई हैं, लेकिन ये इक़दाम जो हैं वो पहले किए जाने थे। मानसून से पहले जब कहा जा रहा था कि स्पेल बहुत ज़्यादा शदीद हो सकता है और इस दफ़ा जो मानसून की बारिशें हैं वो मामूल से कहीं ज़्यादा होंगी, तो उस वक्त इंतज़ामिया की जानिब से कोई खातिर खा इक़दाम नहीं किए गए जिसके जो असरात हैं वो अब कराची में देखने को मिल रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आदिया। शहर कायद का मौसम खुशगवार है और नए स्पेल की भी पेशगोई की गई है। पाकिस्तान में मानसून की ज़्यादा बारिशों का सबब क्या है? चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने बता दिया। कहते हैं 3 साल में बहरुल काहल का दर्जा हरारत मामूल से कम रहा है, जिससे लानीना फेज़ एक्टिव होता है और इसी वजह से मानसून बारिशें ज़्यादा होती हैं। ये रिपोर्ट देखें। इन दिनों पाकिस्तान में मानसून की बारिशें ज़्यादा हो रही हैं। सिंध हो, पंजाब, बलूचिस्तान या KPK, हर जगह ही बादल जमकर बरस रहे हैं। मानसून में ज्यादा बारिशें क्यों होती हैं? चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने वजह बता दी। पैसिफिक ओशियन के टेम्परेचर्स जब मामूल से ज्यादा हों तो इसको अल नीनो कहा जाता है और अगर दर्जा हरारत मामूल से कम हो तो लानीना कंडीशन एक्टिव हो जाती है। अगर मानसून होने से पहले लानीना कंडीशन एक्टिव हो तो इस दौरान पाकिस्तान समेत जनूबी एशियाई ममालिक में अच्छी बारिशें होती हैं। उन्होंने बताया कि रवां साल मौसम गर्मा का आगाज मार्च से हुआ और शिद्दत ज्यादा थी। जायद गर्मी भी मानसून की शिद्दत को बढ़ा देती है। पैसिफिक की दर्जा हरारत मामूल से कम हो तो फिर हमारे यहाँ मानसून की अच्छी बारिशें होती हैं पूरे साउथ एशिया में, बशमूल पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन सभी एरियाज़ में। तो इस वक्त भी मामूल से कम चल रहे हैं। उसके यानी ये इत्तेफाक से पिछले 3 साल से बहरुल काहिल के या पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर्स मामूल से कम हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि हालिया मानसून सिस्टम शिद्दत वाला है, इसका 80% हिस्सा जमीन से गुजरेगा। सरदार का कहना है कि मानसून सिस्टम्स में 60% हिस्सा समंदर और 40% हिस्सा जमीन पर होने के बावजूद तेज स्पेल्स आए। 994 मिलीबार या हेक्टा पास्कल जो प्रेशर की यूनिट होती है, ये इसकी एवरेज वैल्यू है और इस दफ़ा ये एवरेज से कम गई है। पूरे जुलाई में ये अराउंड 991 या 992 रही है। तो ये जो एक्सेसिव हीट होती है ना, ये भी मानसून की अच्छी बारिशों की तरफ वो करती है, कंट्रीब्यूट करती है, यानी उनको बढ़ावा देती है एक तरह से। मैं आपको याद दिलाऊं 2010 में भी ऐसा ही हुआ था कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी, रिकॉर्ड टेम्परेचर हुए थे उस वक्त भी, तो बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी, सुपर फ्लड भी जनरेट हुआ था। उन्होंने बताया कि मानसून का मरकज राजस्थान और मरकजी सिंध के करीब है। सिस्टम का मरकज 8 से 10 घंटे के दौरान सिंध पर आ सकता है। इसी वजह से आज रात और कल के दिन कराची के मुख्तलिफ अजला में बारिशों की शिद्दत ज्यादा होगी। शहर में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला अभी भी जारी है। एलानिया के साथ गैर एलानिया बंदिश का भी सामना है। हमारे नुमाइंदा हबीब खान इस वक्त अख्तर कॉलोनी में मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। जी हबीब, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए शहर में बदतरीन लोड शेडिंग का इस वक्त सिलसिला जो है वो जारी है और कराची के बेशतर इलाकों में के इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो 12 घंटे तक जो है वो पहुंचा दिया गया है। शहर के मुख्तलिफ अगर रिहायशी इलाकों के वाले से बात करें, गुलशन इकबाल, गुलस्तान जौहर, लियारी, कोरंगी, इसके साथ साथ शाह फैसल, मंजूर कॉलोनी और अख्तर कॉलोनी में भी इस वक्त जो बिजली बंदिश का दौरानिया है वो 12 घंटे तक जारी है, जिसके साथ साथ रात के औकात में गैर एलानिया जो बंदिश है वो की जा रही है। इस वक्त भी हम मार्केट में मौजूद हैं अख्तर कॉलोनी में और यहाँ पर कुछ बात करते हैं जो दुकानदार
दुकानदार हैं उनसे। लाइट की क्या सूरत हाल है, दिन में क्या होता है, रात में क्या सूरत हाल रहती है? यार लाइट की सूरत हाल बहुत अबतर है। दिन में लाइट दो दफ़ा आती नहीं है, उससे कारोबार मुतासर है, आपके सामने है। और बिलों में आप देख लो कितने टैक्सेस लग कर आ रहे हैं। और रात को जो है 8 से 10 बजे और 12 से लेकर 2 बजे यानी कि सोने के टाइम, और ना नींद पूरी होती है ना कारोबार हो रहा है। बिल्कुल, जिस तरह आपने सुना कि शहरियों और दुकानदारों का भी यही कहना है कि जब काम पर आते हैं तो काम के औकात में भी लाइट जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बार बार बंद की जाती है और 3-3 घंटे 2-2 घंटे के लिए मुख्तलिफ औकात कार में बंद की जाती है। इसी तरह से जब घरों का रुख करते हैं तो वहाँ पर भी इसी किस्म की सूरत हाल का सामना रहता है, रात 12 बजे से 2 बजे तक, और कुछ इलाकों में रात 3 बजे से सुबह 5 और 6 बजे तक जो है वो बिजली बंद की जा रही है। के इलेक्ट्रिक का काम दूसरी जानिब ये कहते हैं कि शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो नहीं की जा रही है। इस वक्त जो है वो शॉर्टफॉल का सामना है, उसको पूरा करने के लिए जो मुख्तलिफ औकात कार के तहत जो शेड्यूल है 30 जून का, जो कि इलेक्ट्रिक के मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, उसके मुताबिक एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। बहुत शुक्रिया हबीब इस तफसील का। आगे बात करें, सुई सदर्न गैस कंपनी ने एक बार फिर CNG समेत जनरल इंडस्ट्री को गैस सप्लाई मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। सिंध भर के गैस स्टेशन को 72 घंटों के लिए गैस की तरसील मुअत्तल रहेगी। तर्जुमान सुई सदर्न गैस कंपनी के मुताबिक जुम्मे को सुबह 8 से पीर की सुबह 8 बजे तक CNG स्टेशन बंद रहेंगे, जबकि जनरल इंडस्ट्री को इतवार सुबह 8 बजे से 24 घंटों के लिए तरसील बंद रहेगी। तर्जुमान SSGC के मुताबिक ये फैसला घरेलू सार्फिन की ज़रूरत पूरी करने के लिए किया गया है। सिंध हाई कोर्ट ने पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ सोसाइटी पर गोठ बनाने और कब्ज़े के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर DC शर्की DIG शर्की को शोकास नोटिस जारी कर दिए हैं। सिंध हाई कोर्ट में पाकिस्तान पोस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ेशन सोसाइटी पर अब्दुल्ला शाह गाजी गोठ बनाने और कब्ज़े के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने DC शर्की, DIG शर्की, SHO सचल, मुख्तियार कार, सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर हुकाम को भी शोकास नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने अदालत का गोठ ख़त्म करके 2 माह में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दे दिया है और ज़िला इंतज़ामिया और मुतलका हुकाम को रेंजर्स की मुआवनत लेने की भी हिदायत कर दी है। सोसाइटी के वकील ने अपना मौक़िफ़ अपनाया कि अदालती अहकामात के बावजूद फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं किया गया। एक मनसूबा बंदी के तहत सोसाइटीज़ पर गोठ बनाए गए। कराची से लाहौर जाकर पसंद की शादी करने का केस, ज़हीर अहमद की प्रोसिक्यूशन के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध फैज़ एच शाह को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। अदालत ने फैज़ एच शाह को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं? कराची से लाहौर जाकर पसंद की शादी करने का ये केस है। आज सिंध हाई कोर्ट में 3 आइनी दरखास्तों की समाअत हुई है, जिसमें मुद्दई मुकदमा और ज़हीर और शब्बीर की जानिब से वकला कमरा अदालत में मौजूद थे, जबकि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की जानिब से भी आज नुमाइंदगी की गई। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस करीम खान आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इन तीनों आइनी दरखास्तों की समाअत की। एक दरखास्त ज़हीर की जानिब से दायर की गई थी, जिसमें यह कहा गया था चूँकि मुकदमा अब बनता नहीं है, लिहाजा इस मुकदमे को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए, कलअदम यानी कि क्वाशमेंट इसकी कर दी जाए, जिस पर अदालत ने इस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद किया। जबकि दूसरी एक आइनी दरख्वास्त DIG सतह के अफसर से दोबारा से असर नौ तहकीकात करवाने से मुतल्लिक मुद्दई मुकदमा की जानिब से दायर की गई थी और उसमें यह भी कहा गया था कि ज़हीर की मुबैना मुग़विया से मुलाकात को भी रोका जाए। ताहम अदालत ने इस दरख्वास्त को भी नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दिया और अदालत ने कहा कि ये ट्रायल कोर्ट का मामला है, चूँकि अब चालान जमा हो चुका है, लिहाजा ट्रायल कोर्ट से इन सारे मामलात के लिए रुजू किया जाए। एक और आइनी दरख्वास्त थी जो कि प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध फैज़ शाह के खिलाफ दायर की गई थी और उनके खिलाफ ये वकील ने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध हाई कोर्ट के 6 जून 2022 के तहरीरी हुक्मनामे की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और जानबूझकर तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं, लिहाजा उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, जिस पर अदालत ने उन्हें तौहीन अदालत के नोटिस जारी। बहुत शुक्रिया बिलाल इस तफसील का। बारिश और मौसम की खराबी की वजह से कराची से ट्रेनें आज भी लेट रवाना होंगी। ताख़ीर से रवाना होने वाली ट्रेनों में पाकिस्तान एक्सप्रेस, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस और कराकरम एक्सप्रेस शामिल हैं, जबकि पाक बिजनेस एक्सप्रेस को आज मुअत्तल कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे हमारी नुमाइंदा आदिया नाज से। जी आदिया, आगाह कीजिएगा। बारिश और मौसम की खराबी की वजह से जो अंदरूनी मुल्क ट्रेन ऑपरेशन है वो पूरी तरह से मुतासर है और आज कराची से जो ट्रेनें ताक़ीर से रवाना होंगी, इनमें 3 ट्रेनें शामिल हैं, जिनमें पाकिस्तान एक्सप्रेस है, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस और कराकरम एक्सप्रेस शामिल है। जबकि पाक बिजनेस एक्सप्रेस को आज दोनों जानिब से बंद कर दिया गया है और उनके मुसाफिरों को ये कहा जा रहा है कि कोई मुकम्मल रिफंड लेना चाहे तो वो मुकम्मल रिफंड ले सकता है, जबकि जो मुसाफिर पाक बिजनेस एक्सप्रेस के थे उन्हें
किया जाएगा। लेट होने वाली गाड़ियों में फास्ट बिजनेस एक्सप्रेस है जिसे 1 बजे के बजाय अब पाकिस्तान एक्सप्रेस है जिसे अब तकरीबन 1 बजे के बजाय 3 बजे रवाना किया जाएगा। इलाहाबाद एक्सप्रेस को 2 बजे के बजाय 3:50 को रवाना किया जाएगा। कराकरम एक्सप्रेस जो कि 3:30 बजे रवाना होती है उसे अब 4 बजे यहाँ से रवाना किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आदिया, आप हमें तफसीलात से आगाह करी थी। आपको अपडेट करें डॉलर के हवाले से। डॉलर की गिरावट के बाद फिर उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे महंगा हो गया है। अमेरिकी करेंसी 215 रुपये की सतह पर पहुंच गई है। डॉलर की गिरावट के बाद फिर उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे महंगा हो गया है। अमेरिकी करेंसी 215 रुपये की सतह पर पहुंच गई है। टोयोटा के बाद होंडा और सुजुकी ने भी गाड़ियों की कीमत में कमी कर दी है। पाक सुजुकी ने मुख्तलिफ मॉडल्स पर 79,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक कमी कर दी है। साथ ही अटलस होंडा ने भी मुख्तलिफ मॉडल्स पर कीमत में 7,85,000 रुपये से 14.5 लाख रुपये तक की कमी कर दी है। इससे पहले सुजुकी ने मुख्तलिफ मॉडल्स की कीमत में 2,43,000 रुपये से 6,61,000 रुपये तक इजाफा किया था और होंडा ने भी मुख्तलिफ मॉडल्स पर 7,85,000 रुपये से 14.5 लाख रुपये का इजाफा किया था। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ खान बताइएगा। जी देखा जाए टोयोटा के बाद सुजुकी और होंडा ने भी गाड़ियों की कीमतों में कमी कर दी, जो कि 15 रोज पहले जो है गाड़ी की कीमतों में नुमाया इजाफा किया गया था। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि गाड़ियों की कीमतों में इजाफा होने के बाद 15 रोज में गाड़ियों की कीमतों में कमी कर दी गई। इसकी अहम वजह यह है कि डॉलर की कीमत में नुमाया इजाफा हुआ है 12 से 13 रोज में, और जिसमें जो इकदाम उठाए गए हैं, जैसे सुजुकी की जाने से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि सुजुकी मुख्तलिफ मॉडल पर तकरीबन 80,000 से 1,99,000 रुपये तक की कमी कर दी गई है। होंडा एटलस ने मुख्तलिफ मॉडल पर जो है नुमाया कमी की है, जिसमें 2,80,000 रुपये से 5.5 लाख रुपए की कमी कर दी है। मुख्तलिफ मॉडल्स हैं जिसकी कीमतों में कमी की गई है। जो इससे पहले अगर बताया जाए तो मुख्तलिफ मॉडल की कीमतों में नुमाया इजाफा सुजुकी और होंडा की जानिब से किया गया था, और जिसमें मैक्सिमम जो इजाफा किया गया था होंडा की जानिब से 15.5 लाख रुपए का इजाफा किया गया था, और सुजुकी की जानिब से भी तकरीबन देखा जाए 14,24,000 रुपए का इजाफा किया गया था। अब उसके बाद जो कीमतों में कमी देखी जा रही है। माहिरीन का कहना है कि टोयोटा ने एक नया रिवायत कायम की है जिसके बाद उसको फॉलो किया जा रहा है। साथ ही हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी तमाम जो OMC जो कंपनी से गाड़ियां बनाने वाली उनसे बात की थी, और जिससे डॉलर की जो कीमत कम हुई है उसका फायदा आवाम को देने के लिए ऐलान किया गया था। उसके बाद देखा जाए सबसे पहले टोयोटा ने गाड़ियों की कीमतों में कमी की है, उसके बाद सुजुकी ने की है, और उसके बाद होंडा ने भी कमी कर दिया, और जो इतलाक है नई कीमतों का फौरी तौर पर होगा। और यहाँ मार्केट जलाए का कहना है कि अब टोयोटा जल्द ही इस महीने के आखिर तक जो है जो टोयोटा की रजिस्ट्रेशन है और उसकी बुकिंग वो शुरू कर देगी। उसके साथ सुजुकी और होंडा की भी बात की जाए उसकी भी बुकिंग शुरू होने जा रही है। और यहाँ पे इस वक्त अगर देखा जाए जो गाड़ी की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ था, उसके बाद जैसे गुज़िश्ता रोज अपडेट दिए कि गाड़ियों की सेल में भी जो कमी देखी जा रही है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक आम आदमी कहें या मिडिल क्लास कहें, उसकी पहुंच से गाड़ियों की कीमत बाहर चली गई थी। जी बहुत शुक्रिया अशरफ इस तफसील का। शहर कैद में प्राइम मिनिस्टर यूथ स्पोर्ट्स टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज़ 25 अगस्त से होगा। हॉकी, बैडमिंटन और टेबल टेनिस समेत 12 खेल रखे गए हैं। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल से। जी जावेद बताइएगा। जी HSC के ज़रिए तमाम मुल्क भर में प्राइम मिनिस्टर स्पोर्ट्स लीग होने जा रही है। इस इवेंट में क्या तफसीलात हैं, कितने खेल होंगे और कब से ये शुरू होगी, हम मज़ीद जानेंगे। नेशनल कोऑर्डिनेटर मुबशिर मुख्तार जो इस इवेंट के रूह रवां भी हैं और मुख्तलिफ़ खेलों की निगरानी करेंगे, सिलेक्शन में भी ये काफ़ी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, और डायरेक्टर भी हैं सरसरी यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स के। हम इनसे बात करेंगे। मुबशिर भाई, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या इसकी तफसीलात है, क्या क्राइटेरिया क्या होगा सिलेक्शन का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है, इसमें टैलेंट हंट यूथ स्पोर्ट्स लीग होने जा रही है, जिसमें हम लोग 15 से 25 साल तक के जितने बच्चे और बच्चियाँ हैं उनको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। जो टैलेंट पूरे पाकिस्तान में अच्छे स्पोर्ट्स में और ख़ासतौर पर हॉकी में पूरे पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद है, लेकिन उसको तलाश करने के लिए जो है ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने और हायर एजुकेशन कमीशन ने ये एक अपने इश्तराक से ही जो है ये इवेंट कराने जा रहे हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने पूरे पाकिस्तान में 25 के करीब जो बड़े शहर हैं उसमें ये टैलेंट हंट करेंगे, और इंशाल्लाह ताला जिस नज़र आएगा कि आपको हम इस प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के लिए हम लड़के और लड़कियां देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, सिंध में इसकी कब डेट क्या होगी, कराची में कब से बाकायदा इसका आगाज़ होगा?
हाँ जी, हम लोग इसका बाकायदा इसका जो है ओपनिंग हम लोग करने जा रहे हैं 25 तारीख से। मैडम शज़ा फातिमा ख्वाजा जो यूथ प्रोग्राम की मिनिस्टर भी हैं, वो कराची तशरीफ़ ला रही हैं, सरसे यूनिवर्सिटी में तशरीफ़ लाएंगी। यहाँ पे हम लोग एक मीडिया ब्रीफिंग रखेंगे, उसके बाद वो सामने हमारा जो ग्राउंड है कराची ऑर्गेनाइजेशन का, उधर जाके बाकायदा इसका इफ्तिताह करेंगी और आप देखेंगे कि उसमें बड़ी तादाद में लड़के और लड़कियाँ उसके अंदर हिस्सा लेंगे। इस तरह हम ये 5 शहरों में जाके इधर की हम लोग लड़के और लड़कियों की टीमें बनाएंगे 15 से 25 साल की, और उसके बाद फिर हम इनकी आपस में इनकी जो टीमें बनेंगी इनकी हम लीग मैचेस कराएंगे। बहुत शुक्रिया। सुना आपने कि मुबशिर मुख्तार बता रहे थे कि कोशिश है नया टैलेंट लाया जाए और वो टैलेंट जो बिल्कुल नज़र नहीं आता और उसके लिए मेहनत की जा रही, ख़ासकर ख़वातीन स्पोर्ट्स में जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी होती है, मौक़े उनको नहीं मिलते, तो ये इस बार कोशिश किया कि ख़वातीन को मौक़े भी पूरे मिलें और उनमें के खेल के निखार। जी बहुत शुक्रिया जावेद इस तफसील का।